الحمد لله رب العالمين وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مصير له ولا وزير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي تيموري لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا معصوم بعد عصمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے اس محبت بھرا گاؤں میں جماعت اہل سنت کے آسمان پر چمکنے والے علمی فکری ادبی شخصیتیں چاند اور سورج کی طرح ہیں، سب کے سب آپ کی محبت بھرے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں اور آپ بڑی دیر سے ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اے بابو رے 4 منٹ بیٹھو نا بھائی، 10-15 آدمی ہیں اس میں بھی اب نقیب سدا بہار بھی ہیں، خطیب باوقار بھی ہیں، علماء ذی وقار بھی ہیں، شاعر گر بھی ہیں، خطیب گر بھی ہیں، نقیب گر بھی ہیں، ادیب گر بھی ہیں. سب کے سب یہاں موجود ہیں. خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت استاد الاساتذہ حضرت اللہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد شمس اللہ خان صاحب اللہ
مکمل دعاؤں کا سحاب بن کر میرے خطابت کی زمین پر نہیں بلکہ میرے ذکر نظر اور وجود کی زمین پر برس رہے ہیں۔ منبر نور پر جماعت اہل سنت کا وہ قدابر عالم دین پیر طریقت بھی ہیں، رہبر راہ شریعت بھی ہیں، حضرت علامہ محمد جمال احمد مصباحی صاحب پرنسپل جامعہ حاضہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ نقیب اعظم ہند و نیپال، میں تو کہوں نقیب مانے اعظم ہند، وہ الگ سی بات ہے۔ یہ ادیب شہیر بیتر اخلاص و محبت حضرت علامہ رضا اللہ مونس نے واقعی اپنے محبت کے دسترخوان پر آنے والے دوست نما نقیب کو اپنے دسترخوان پر اتار دیا ہے اور خود میزبان بن کر ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حالانکہ ان کی نقابت دنیا فکر و نظر کے آسمان پر چاند کی طرح چمکتی بھی ہے، سورج کی طرح دمکتی بھی ہے۔ دوسرے جانب نقیب اعظم ہند و نیپال بڑے اچھے نقیب ہیں، حضرت علامہ ضیاء القادری ضیاء مظفر پور سے مشہور ہیں، مگر ہے آپ ہی کے علاقے کے ہی، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر انقلاب آپ کی محبتوں اور شفقتوں کے آنگن میں پروان چڑھنے والا وہ نایاب شاعر جن کو آپ اپنے حساب سے بیٹا پوتا کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر دلبر راہی اس شاعر کا نام ہے۔ جو آپ چلے جائیے سیوان چھپرا کے علاقے میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دلبر راہی صرف لچھمی پور کا نام نہیں روشن کیا ہے، پورے نیپال کا نام روشن کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ شعر و شاعری کپر لگا کر اسلامی اسٹیج کے رنوے سے پرواز کرنے والا شاعر اہل سنت حضرت بسمل نیپالی بڑی تیزی کے ساتھ اڑان بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شعر و سخن کے پروں کو مضبوطی عطا فرمائے اور خوب عروج بخشے۔ منبر نور پر بہت سارے لوگ ہیں، سب کا نام لیتے لیتے تقریر بھی نہیں ہوگی، ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ سب بڑے ہیں، علامہ ثناء اللہ صاحب کے وہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی تو بات ہی نرالی ہے، دولہا ہیں، ہے نا؟ ان کا چہرہ دیکھیے اور ان کے وقار کو سلام کیجیے کہ اللہ نے اتنی کم عمر میں کسی کو ایک بار دولہا بننا نصیب ہوتا ہے، ان کو دو بار دولہا بننا نصیب ہو گیا۔ حضور مفتی صاحب چولہا تشریف رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ دعا چاہتے ہوئے، بیٹا آپ کا ہوں میں۔ علامہ مہدی حسن علیمی صاحب ہیں، علمی فکری تنتن و تمترات کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ حضرت علامہ عارف صاحب قبلہ ہیں، علامہ توقیر رضا صاحب قبلہ ہیں۔ شرف الدین شرف صاحب سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں، گفتگو کی جائے نا بھائی؟ تو صبح نو رات کے زنداں سے نکالی جائے، صبح نو رات کے زنداں سے نکالی جائے، صبح نو جب تک نہیں بولیے گا اگلا مصرع یاد نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر یا رسول اللہ، بہت شکریہ۔
صبح نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے، اور ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ہم نہ دیں گے۔ یہ دیکھیے علامہ جمال احمد صاحب جمالیاتی تیور کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں، علامہ انور صاحب نورانیت کا جامع پہن کر تشریف رکھ رہے ہیں، علامہ شاعر انقلاب حضرت ناظر حسین صاحب کے جلوہ گر ہیں، سب بڑے ہیں ہم سے۔ صبح نو رات کے زندہ سے نکالی جائے، تیرگی وقت کے رخسار سے ٹالی جائے، اور ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، ہم نہ دیں گے کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، اور معذرت کے ساتھ کہ کھل ہی جائے گا بھرم، کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا براز، آپ نہیں بولیے گا چلے گا، ہم اپنے علماء سے دعا لے لیں گے کافی ہے۔ کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا براز، پارساؤں کی جو روداد کھلا لے جائے، پارساؤں کی جو روداد کھلا لی جائے، پارساؤں کی جو روداد کھلا لی جائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تقریر کا سلسلہ دراز ہو، تاکہ مغلق میں ادا عشق کی نماز ہو، کرم فرما ہم سب پر وہ گدا نواز ہو، جن کی غلامی پر ہم سارے بچے بوڑھے جوان سنیوں کو ناز ہو۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لبوں پر درود و سلام کا سوز و ساز ہو۔ تو آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے سائبان میں بیٹھ کر عشق رسالت کا غازہ اپنی پیشانی پر مل کر، پھولوں کی طرح کھل کر، سنیوں کی طرح کھل کر، اہل عشق کی طرح مچل کر، اہل ادب کی طرح سنبھل کر، ایمان کے نور کے ساتھ، عشق کے وفور کے ساتھ، ہم رنگیے کیفور کے ساتھ، اور اس خاطیو آسی معراج اصدق جیسے بندے مجبور کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ، جذبہ سرشاری کے ساتھ، مکمل خاکساری کے ساتھ، سراپا انکساری کے ساتھ، اور مکمل بیداری اور تیاری کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امید و یقین کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کریں کہ اس اہتمام سے منزل کے سمت بڑھتے رہو،
یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم 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 پر درود و سلام پڑھتے رہو بھٹک نہ جائے کہیں راہ سے تمہارے قدم 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 پر درود و سلام پڑھتے رہو پورا مجمع جو سامنے ہے وہ بھی جو بغل میں ہے وہ بھی زمیندار اور چیئرمین حضرات اور چوکیدار حضرات سارے لوگ مل کر پورا مجمع دل لگا کر درود شریف کا تحفہ پیش کریں اور لگے کہ ہم نبی رحمت کی بارگاہ میں لو لگا کر درود شریف کا تحفہ پیش کر رہے ہیں پورا مجمع جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلبر راہی صاحب رضا اللہ مونی صاحب علامہ جمال صاحب ناظر بھائی ضیاء بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جملوں کی گلشن میں سیر کرا ہوں یا صرف کچھ اصلاحی باتیں کر کے اپنی بات ختم کر دوں مگر جیسا مزاج ہوگا تھوڑا سا میں پرکھ رہا ہوں جیسا آپ کا مزاج ہوگا سماعت کا انشاءاللہ خطاب بھی ویسے ہی ہوگا کہتے لفظ دو شعر اور سن لیجیے سبوں نے نظم میں پڑھا ہے میں نثر میں پڑھ دیتا ہوں مزاج بنے گا تو دو تین شعر ہم بھی پڑھ دیں گے ہے نہیں لیکن پہلے محفل پاک جو سجائی ہے تو سنت رسول کانفرنس ہے دوسری طرف جشن دستار بندی ہے دو خوشیوں کا سنگم ہے اور اس سنگم میں بھی اس قدر ہلکا پن مجھے لگ رہا ہے شروع سے دیکھ رہا ہوں علامہ عبد الکریم صاحب تو اس لائن کے ہیں اور آپ اس لائن کے ہیں کیا یہ میں اکثر و بیشتر ایک بات علاقے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے علماء کو نہیں بلا سکتے اتنے علماء کو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی صاحب یہ بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کو بلانے میں مہینوں ٹائم لگ جائیں گے لیکن ان کی صحت مت دیکھیے ان کا قد مت دیکھیے ان کا رشتہ کہاں سے جڑ گیا ہے وہ دیکھیے اس رشتے کی بنیاد پر اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں ہمارے سماج کو ذات برادری کے دیمک نے اس طرح کھوکھلا کر دیا ہے کہ جس کو سنبھلتے اور پور ہوتے بہت ٹائم لگ سکتا ہے مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ذات برادری کا لبادہ اوڑھ کر قوم کے سامنے آتے ہیں بلکہ یہ عالم دین وہ ہے جن کی کوئی برادری نہیں ہوتی ہر برادری والے ان کے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہی وجہ ہے علامہ شمس الحق صاحب قبلہ ان کی آواز پر آ گئے علامہ جمال احمد صاحب ان کی آواز پر آ گئے علامہ مہدی حسن علیمی صاحب ان کی آواز پر آ گئے علامہ ضیاء صاحب ان کی آواز پر یہاں لبیک کہتے ہوئے آ گئے بسمل نیپالی صاحب سفر پہ مسافت کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ان کی آواز پر یہ عبد الکریم کی آواز نہیں ہے یہ محمد حسن کے بیٹے کی آواز نہیں تھی یہ ان کے بھائیوں کی آواز نہیں تھی یہ صرف لکشمی پور والوں کی آواز نہیں تھی یہ صرف اور صرف سرلاہی کے باشندوں کی آواز نہیں تھی یہ کسی انصاری کی آواز نہیں تھی جس کی بنیاد پر علماء کا ہجوم ہو گیا یہ کسی خان کی آواز نہیں تھی کہ علماء آ گئے کسی شیخ کی آواز نہیں تھی کہ علماء قدم رنجا فرما گئے کسی مکرانی کی آواز نہیں تھی جس پر علماء کا قافلہ اتر پڑا ہے کسی بیٹھا کی آواز نہیں تھی جس کی بنیاد پر علماء کرام کا یہ نورانی گروہ آپ کے فکر و نظر کے محبت والے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں یہ عبد الکریم کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک نبی کے علم کے وارث کی آواز تھی یہی تو وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ
बेशक क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। क्या कहना है। नवाज साहब, अच्छा इंशाल्लाह पढ़ दूंगा। अभी 2-3 शेर मैंने इनके हवाले से उसमें ऐड कर दिया है। अल्लाह का फضل, मैं बचपन ही से इनके कदमों से लगे हुए जूतियों को अपने सर का ताज बनाया है, तब जाकर के अल्लाह ने ये ताज बख्शा है। ये हमारे मोहसिन भी हैं, मुरब्बी भी हैं, हमारे रूहानी और तरबियती बाप भी हैं। अल्लामा शमसुल्लाह खान साहब को मिला। सुनिए पूरा मजमा, जरा आहिस्ता बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगाते या रसूल अल्लाह। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद में रहकर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। अब्दुल करीम साहब किबला और उनके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद हसन साहब, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। मेरी तरफ देखिए, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामिल दरूद के अंदर। रसूल पाक की महफिल वही सजाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। रसूल पाक की महफिल वही सजाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह 2-3 बातें, एक आध बातें शादी के हवाले से, एक आध बातें इल्म के हवाले से करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। चूंकि 2 खुशियों का संगम है, तो मेराज तक उन दोनों संगमों का फैज लुटना चाहेगा। मुलाहिजा फरमाइएगा, अल्लामा जिया साहब किबला कह रहे थे कि वो कलाम पढ़ा जाए। आप लोगों की क्या ख्वाहिश है? 2-3 शेर हम पढ़ें, इजाजत है तो सुनिएगा ना भाई साहब। एक बार जान लीजिए, अगर आपने 2-3 शेर सुन लिया तो तकरीर अच्छी नहीं बहुत अच्छी होगी, और नहीं सुना तो और अच्छी होगी। अरे आप लोग वहीं से सुनिए। हाँ, लगना चाहिए कि हुसैनी उधर भी है, हुसैनी इधर भी है। सुभान अल्लाह। नबी के वफादारों का कब्जा हर जगह होना चाहिए। मैं आमद रसूल के हवाले से एक मतला पढ़ता हूँ, और उसके बाद 2 शेर इनके हवाले से पढ़ूंगा, मक्ता पढ़ूंगा, फिर थोड़ी देर तकरीर करूंगा। अल्लाह ताला इन चैनल वालों के रिश्ते हलाल में दे, पनाह बरकतें अता फरमाए। है ना? सुनिए ज़िया भाई, देखेंगे दिलबर भाई। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। आमद दिलबर की तरह मेरी आवाज नहीं है, बिस्मिल की तरह मेरा लहजा नहीं है, और नाजिर हुसैन साहब की तरह मेरे पास रिदम नहीं है, और हजरत शरफुद्दीन की तरह गला नहीं है। मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे पास जैसा भी गला है अपना गला है, जैसा भी गला है अपना गला है। मुलाहिजा फरमाए, लगे के आशिक के बीच में पढ़ रहा हूँ कि आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या
5 टकिए देते हैं लोग, अल्लाह का करम है 100 टकिए में मिलता है भाई। ये लक्ष्मीपुर है, पूरी भरपूर है लक्ष्मी यहाँ, ये बचा नहीं दिया, ये लक्ष्मीपुर है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उलमा के उम्र में, इल्म में, रिस्क में बेपनाह बरकत। 12 बजे के बाद भी मिल रहा है, बहुत पैसा। हाँ, 12 बजे के बाद। अच्छा, अल्लाह का करम है भाई, हम लोगों का कभी 12 नहीं बजता भाई। भाई सुन्नियों का कभी 12 नहीं बजता है, सुन्नी दूसरों का 12 बजा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। शेर बोलना मुलाहिदा फरमाइएगा, क़यामत सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आपका पढ़ना है, रंग पैदा कीजिए। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया, आलम में क्या क्या हो गया। खाना है काबा झुका यसरब मदीना हो गया, यसरब मदीना हो गया, यसरब मदीना हो गया। एक से देखिए मुकद्दर कैसे बनता है, जिस सीना में नबी का मदीना बस जाए ना, उनका कमाल देखिए। मुलाहिदा फरमाएंगे, अच्छा लग रहा है भाई साहब, अच्छा लग रहा है तो आहिस्ता बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब आहिस्ता कर दिया तो सब लोग जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, शम्स भी आया फलक कर महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। शम्स मतलब सूरज, मेहमाने चांद। मेरे नबी के उंगली के इशारे से अली के लिए साहिबा में सूरज पलटा भी है, नबी के इशारे से चांद का सीना फटा भी है। शम्स भी आया पलट कर महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। कि शम्स भी महदो पारा हो गया, महदो पारा हो गया। जब शहनशाह, जब शहनशाह मदीना का इशारा हो गया, का इशारा। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब शहनशाह मदीना का इशारा हो गया, इशारा हो गया, का इशारा हो गया। अब अल्लामा अब्दुल करीम साहब एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, सुनिए। शाहे मदीना हो गया, फजल मौला से जनाबे हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम। शाह फजल मौला से जनाबे हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम। अब्दुल करीम से जितनी मोहब्बत जिनको है वो उतने पुरजोर इस्तकबाल करेगा। फजल मौला से जनाब हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम। के फजल मौला फजल मौला से जनाब हजरत अब्दुल करीम, हजरत अब्दुल करीम। वारिस इल्म शहंशाह मदीना हो गया, इल्म मदीना हो गया। वारिस इल्म शहंशाह मदीना हो गया। एक शेर और सुनिए मोहब्बतों के साथ। ये दस्तार बंदी है, एक शेर दस्तार बंदी के हवाले से और एक शेर शादी के हवाले से, उसके बाद तकरीर।
मक्का भी छोड़ दूंगा, अशार भी छोड़ दूंगा। सुनिए, वाह वाह दस्तार बंदी का नजारा देख कर, दुआएं चाहूंगा अल्लामा जमाल साहब। वाह वाह, हाँ वाह वाह दस्तार बंदी का नजारा देख कर, का नजारा देख कर, के आपके वालिद का सीना, आपके वालिद का सीना आज चौड़ा हो गया, आज चौड़ा हो गया, आपके बाबा का सीना आज चौड़ा हो गया। हाफिज बदर आलम साहब है, अल्लामा अनवर साहब उधर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझता हूँ दुआएं मिल रही है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। एक शेर और सुन्नत रसूल के हवाले से, और उसके बाद ये रब का करम है, नबी की इनायत है, और फिर बुजुर्गान दीन के जो फुलूज़ो बरक़ात है उन लोगों की पहल में ये दुल्हा बने। शेर पढ़ता हूँ, सुनिए कि गौसो ख्वाजा, जितने गौस वाले, ख्वाजा वाले, आला हजरत वाले, ताज शरिया वाले हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा मस्ती में हाथों को लहरा कर या हबीब अल्लाह, और जरा कैफियत से या नबी अल्लाह। गौसो ख्वाजा और रज़ा ताजो शरिया के तुफैल, ताजो शरिया के तुफैल, गौसो ख्वाजा और रज़ा ताजो शरिया के तुफैल, ताजो शरिया के तुफैल। अगर सच्ची बात है तो आप मुस्कुराइएगा, नहीं तो कोई शिकायत नहीं है कि गौसो ख्वाजा रिश्ता हो गया, साहब रिश्ता हो गया, आपका अब करीम साहब रिश्ता हो गया, साहब रिश्ता हो गया। आमद सरकार से आलम में क्या क्या हो गया। सुनिए, आलिमों को कभी भी हकीर फकीर नहीं समझना चाहिए। आलिमों को कभी गिरी नजर से नहीं देखनी चाहिए। आलिमों को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखनी चाहिए। आलिमों को कभी भी जलील नहीं करना चाहिए। आलिमों की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आलिमों की कभी भी चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। आलिमों की कभी भी उसके पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई ऐब नहीं निकालनी चाहिए। आपको पता है मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? हाँ, भले वो आपका बेटा हो, भले वो आपका पोता हो, जैसे अल्लामा अब्दुल करीम साहब आज आपके सर पर रस्म दस्तार बंदी के मौके से पगड़ी बांध दी गई है। आज से पहले आप सनद
लेकर आ चुके हैं। आपको आपके असातिज़ा ने आलिम कहकर भेज दिया है, आलिम बनाकर भेज दिया है। कुरान की तिलावत आपने की है, उस्ताद की बारगाह में खिदमत के लिए आप हाजिर हुए हैं। आपने दाल और रोटी मदरसे की 14 साल तक चबाया और खाया है। आपने उस्ताद से डंडे भी खाए हैं, आपने उस्ताद से बातें भी सुनी है, आपने उस्ताद की खड़ी खोटी बातें भी सुनी है, मगर आपने कभी अपने लब से शिकायत उस्ताद के लिए नहीं निकाले हैं। और इसी का ये फल अल्लाह ने दिया कि आपने असातिज़ा और बुजुर्ग आलिमों के हाथों से आपके हाथ में सनद आलिमियत फजीलत दे दी गई है। आपके घर का बेटा आया है, आपके रिश्ते में बेटा हो सकते हैं, आपके रिश्ते में बेटा हो सकते हैं, आपके रिश्ते में नवासा हो सकते हैं, आपका रिश्ते में भतीजा हो सकते हैं, आपका रिश्ते में भांजा हो सकते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इसको आलिम की नजर से देखिए। भांजा तो आपका ही रहेगा, बेटा तो आपका ही रहेगा, बेटा तो आपका ही रहेगा, भतीजा तो आपका ही रहेगा। मगर सिर्फ आप भतीजा समझ कर देखेंगे तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी, वो सवाब नहीं मिलेगा। मगर अपने भतीजे को जो आलिम दीन है, जो हाफिज़ कुरान है, जो इल्म मुस्तफा का वारिस है, उनको अगर आपने भतीजा को आलिम समझ कर देख लिया तो फिर मुस्तफा का वो फरमान आपके नजरों के सामने है। मेरे नबी फरमाते हैं, मन सारा आलिम फकअन्नमा सारनी व मन साफहा आलिम फकअन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिम फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी फी दुनिया अजलसहु अल्लाहु मई यौमल क़यामा। मुस्तफा फरमाते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन बनाई, जिनके सदक़े में आसमान बनाया, जिनके सदक़े में शजर बनाए, जिनके सदक़े में हजर बनाया, जिनके सदक़े में पत्थर बनाया, जिनके सदक़े में लालों को हर बनाया, जिनके सदक़े में नदियों नहर बनाया, जिनके सदक़े में बरगो समर बनाया, जिनके सदक़े में लाले यमन बनाया, जिनके सदक़े में दुर्रे अदल बनाया, जिनके सदक़े में मुश्किल खुदर बनाया, जिनके सदक़े में दिल लगन बनाया, जिनके सदक़े में नसरीनो नस्तरन बनाया, जिनके सदक़े में सारी कायनात बनाया। वो मुस्तफा फरमाते हैं कि आलिम दीन का जिसने चेहरा मोहब्बत से देख लिया, गोया उसने अपने भतीजे का नहीं, अपने मुस्तफा का चेहरा देख लिया, अपने नबी का चेहरा देख लिया है। जो आलिम दीन से मुसाफहा करेगा, गोया वो अपने नबी से मुसाफहा कर लिया। जो आलिम दीन से मोहब्बत करेगा, गोया अपने नबी से मोहब्बत कर लिया। जो आलिम दीन से दीन की सोहबत में बैठ गया, गोया वो अपने नबी की सोहबत में बैठ गया है। और जो दीन की सोहबत में बैठेगा, मैदान महशर में वो बंदा अपने नबी के पहलू में बैठा होगा। आलिमों से प्यार कीजिए। आलिमों की एहानत करने से क्या मिलेगा आपको मालूम है? कितना बड़ा आप गलत काम कर रहे हैं मालूम है आपको? हम हो या आप हो। हदीस पाक है, मन अहान आलिम फकद अहान नबीया वमन अहान नबीया फकद अहान जिब्राइला वमन अहान जिब्राइला इला आखिरिल हदीस। मेरे नबी ने फरमाया, जो आलिम दीन की जर्रा बराबर तौहीन करता है। अल्लाह मजमान साहब, ए बाबा, ए छोटू, 3 मिनट बैठ, ये सब बात सुनना चाहिए बाबू। हमारे बच्चों को हमने आपने वो तालीम नहीं दिया जिस तालीम से जिंदगी सबकती है, जिसका ये नतीजा आप नजर उठा के देखिए, जिसका कोई घर में नहीं सुनेगा ना, मदरसा में जाके मस्जिद में जाके मौलाना साहब पर इमाम साहब पर पूरे बरसेगा। यहाँ झाड़ू का ही नहीं लगा। वहाँ जमाल साहब इंद्रानी कैसे गंदे फूल मुरझा
क्यों नहीं पटवाए? आपने इमाम उनको रखा है कि अपना गुलाम रखा है? इमाम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में वो इमाम है भाई। इमाम का हमने आपने सिर्फ मस्जिद में इमाम बनाया है, मस्जिद के बाहर हमने आपने उलमा को गुलाम समझ लिया है, जिसका ये नतीजा है कि हम कामयाबी की राह भी नहीं देख पा रहे। मंजिल तो दूर की बात है, राह पर भी नहीं जा पा रहे हैं, राह पर भी नहीं जा पा रहे हैं, मंजिल तो बहुत दूर की बात है। आलिमों की सोहबत में बैठने से लोग भाग रहे हैं। ऐसी मजलिसें बड़ी मुश्किलों से सजती हैं और ऐसे पैगामात भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हमारे बच्चों में दीनी तालीम ना क्या कहिए, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर क्या, कुछ भी नहीं है। अगर तालीम दीनी होती तो ये हमारा लड़का कान छेदा के लड़की बनने की कोशिश क्यों करता? आप देखिए अपने घरों में अपने बेटे भतीजों को, अगर ये इस्लामी तालीम उतनी हासिल कर लिया होता, तलबुल इल्म फरीदत अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द हर औरत पर फर्ज है, फर्ज है। उतना इल्म तो जरूरी है। इसकी तशरीह बुजुर्गों ने बड़ी अजीब अजीब की है, तो आप तक रखूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इल्म दीन से हमारे और आपके बेटे का सीना खाली है। यही वजह है कि नचनिया हमारा बेटा बन रहा है। बाल मुर्गी तो मुर्गी मुर्गा कटकटाने लगा। हाँ, ये जो कुंची निकालता है डोरी ऐसे, और उसमें भी लड़का पेंट करवा लेता है। किसकी कमी मालूम है? एक तो तालीम की कमी, दूसरी हमारी तरबियत देने में कमी है। सिर्फ उन बेटे और बेटियों में कमी नहीं है, हम बाप है ना, हम गार्जियन है, तो हम में भी कमी है। मैदान महशर में हर हाकिम से महकूम के ताल्लुक से सवाल होगा। बादशाह से पूछा जाएगा तुम्हारे मुल्क में जो रियायत है उसकी तुमने देखभाल कैसे की, क्यों नहीं उसके साथ इंसाफ किया? तो हाकिम जो मुल्क का होगा तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसके साथ। वैसे ही जो घर के हाकिम है, बाप हो या माँ, भाई हो या बेटा, सुनना मेरी बातों को भाई साहब, बाप हो या माँ, भाई हो या बेटा, कोई भी अगर गार्जियन है और आपका बेटा शरीयत के हुदूद से निकल रहा है, आपकी बेटियां सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीके को छोड़कर बंबई की आवारा एक लड़कियों की नकल कर रही है, तो मैदान महशर में बाप से भी पूछा जाएगा, भाई से भी पूछा जाएगा, शौहर से भी पूछा जाएगा, बेटा से भी पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें घर का हाकिम बना दिया था, बेटे पर तेरा कब्जा था, बीवी पर तेरा हुक्म चलता था, बेटे पर तेरी हुक्मरानी थी, घर के पोते और पोतियों पर तेरा कब्जा होता था, मगर तुझे गार्जियन बना था। तेरा बेटा आवारा कैसे हो गया, तेरी बेटी पर चोरी कैसे हो गई, तेरी बीवी पे हया कैसे हो गई, तेरे घर के बच्चे इस्लाम के अहकाम के हुदूद से बाहर कैसे निकल गए? क्या जवाब दीजिएगा? तो जरूरत इस बात की है कि तालीम इस्लाम की बच्चों को भी दिलवाइए और तालीम से ज्यादा बच्चों की तरबियत पर गौर कीजिए, तरबियत पर गौर कीजिए। एक बात और, हम बड़ी तजर्बा कर रहे हैं और देख रहे हैं, उम्र कम है लेकिन बहुत तजर्बा हो रहा है। आजकल स्कूल में, कॉलेज में, बोर्डिंग स्कूल, ये क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग ना बोलते हैं, बोर्डिंग स्कूल इंग्लिश मीडियम है ना, प्राइवेट स्कूल, उसमें 500-500, 1000-1000, 1500, 2000 एक बच्चे का फी महाना दे रहे हैं भाई साहब, दे रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां क्या पढ़ के आ रहे हैं?
गार्जियन को पता है? मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, वो दिन आएगा कि आपके बच्चे के सर पर टोपी तो होगी, मगर सीने से नबी की मोहब्बत निकल चुकी होगी। आपकी बच्चियां सर पर दुपट्टा तो थोड़ी देर के लिए रखने वाली दिखाई देंगी, मगर जन्नत की राह से बहुत दूर जा चुकी हैं। बेटे होंगे आपके, स्कूल में पढ़ाने से मजहब इस्लाम या मजहब इस्लाम के मुबल्लिगीन कभी बना नहीं करते। आपको किसी आलिम से नहीं सुना होगा आपने कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, मैथ ना पढ़ाओ, बायोलॉजी सायोलॉजी ना पढ़ाओ, मैथमेटिक्स ना पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर फिलासफर ना बनाओ। ऐसा कोई आलिम नहीं कहेगा। सब आलिम यही कहते हैं, अरे मेरे भाई, आज का तकाजा ये है कि अंग्रेजी का बोल वाला है, अंग्रेजी का चर्चा बोल रही है ये जबान, हर जगह उसी का चर्चा है, हर जगह उसी का प्रचार है, हर जगह उसी की धमक है, हर जगह उसी का कब्जा है। अब आप अपने बेटे को अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, हम अपने बेटे को मुल्के नेपाल में रहकर नेपाली नहीं पढ़ाएंगे। हमारे एक जमात के बावकार उलमा से पूछिए, जब दफ्तर में जाना होता है, बड़ी बड़ी पगड़ी है, बड़े बड़े जुब्बे वाले हैं, बड़ी बड़ी टोपियों वाले हैं, बड़े बड़े रकम वाले हैं, बड़े बड़े से उनके पाँव के भवन के पीले में फख्र महसूस करते हैं। मगर जब हम में से कोई हाली में भी दफ्तर में जाता है, अपने मुल्क के दफ्तर में जाता है, तो वहाँ पूछते हैं ये बड़ी जुबान में अरबी ये जानते हैं, उर्दू ये जानते हैं, मंतिक ये जानते हैं, फलसफा ये जानते हैं, ग्रामर ये जानते हैं, नहव ये जानते हैं, सियासत ये जानते हैं, क़यादत ये जानते हैं, सदारत करना ये जानते हैं। मगर हमारे बाबा उलमा से पूछिए, वहाँ पर जाने के बाद जब नेपाली जुबान नहीं बोल पाते हैं तो किस कदर से नीचे हो जाता है। तो जरूरत ये है कि नेपाली भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाए, हिसाब भी पढ़ाया जाए, जुबान चाइनीज भी पढ़ाई जाए। मगर सबसे पहले डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, फलासफर बाद में बनाना, सब बनाओ, मगर सब बनाने से पहले अपने बेटे को इस्लाम की तालीम से आगाह कर दो, कुरान की तालीम से हजार रुपया महीना हम दे रहे हैं। हमारा बेटा सुबह सुबह जाता है, एहसास है हमें और आपको? एहसास है? लगाता है कि नहीं? खशका के हवाले से मुफ्तियान निजाम है, पूछिए, बोलने में खता हो तो अता हो जाए, इन लोगों से पूछिए। आला हजरत सरकार फरमाते कशका लगाना, अपनी जबान में अबीर लगाना, खुशी हो के गम। ये वो कोई जीत गया, पूरा मोहल्ला धमाधम दिए हुआ। आपको पता है, सुनिए, जो कशका लगाता है ना, अबीर जिसको कहते हैं, वो लगाना हराम है। सिर्फ हराम ही नहीं, आपने अगर लगा लिया और ये जान गए कि ये हराम है, मसला में हराम है, उसके बाद भी लगा लिया जानबूझकर, तो मालूम है निकाह आपका खत्म। मुरीद अगर किसी से हुए, पीरी मुरीदी खत्म। मालूम है आपको? ईमान आपका खत्म। आप दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा वाले नमाज में जाने वाले होंगे, मगर अल्लाह की नजर में आप ईमान वाले नहीं। ये कशका है, कशका अबीर जिसको कहते हैं। नेताजी जीत गए भाई, जीत गए, अच्छी बात है। माला पहनाइए, चादर दीजिए, गला मिलिए, अतर लगाइए, खूब पहनाइए, ये भी तो खुशी का तरीका है कि नहीं? खुशी का तरीका, दावत खिलाइए, खुशी का तरीका है। मगर हमने आपने थोड़ी देर की खुशी के लिए, हक वही है जो सर चढ़ के बोले, दिलबर भाई। और आज तक मैंने कभी किसी की परवाह किया भी नहीं। जितना जानता हूँ अल्लाह और रसूल के फजल से, असातिज़ा की दुआओं से मैं हिम्मत जुटा के कौम तक वो बातें पहुँचाई देता हूँ। अभी 1:30 बज लाए, खत्म किया जाए। मुस्कुरा कर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। जिनके हाथ सलामत है, एक हाथ हसन के नाम पर,
एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठाकर सबने बोलिए या हुसैन। जिनके हाथ सलामत है और जबान सलामत है, हाथ उठाकर जबान से जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इल्म की कमी है, चलिए हजार हजार रुपया देते हैं तो कष्टा कभी मत लगाइए, कष्टा कभी। अब लोग कहते क्या करें हजरत, खुशी का मौसम रहता, कोई जीत गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसमें दोस्त अहबाब लगा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका दोस्त बहुत जिगरी हो और आपको 2 मिनट के अंदर में 2 करोड़ की लॉटरी लग गई और आपके पास वो पैसे भी आ गए, खुशी की इंतहा रहेगी? बहुत खुशी होगी ना भाई। 2 रुपया के मालिक के लॉटरी लग गई, नेपाल गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ दे दिए, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो खुशी होगी ना भाई साहब। और आपके सबसे जिगरी दोस्त, 50 साल के दोस्त, जो आपके साथ खाता हो, उठता हो, बैठता हो, सोता हो, जागता हो, इधर उधर जहां जाए वहां आपके साथ हो, आप उनके मशवरे के बिना काम नहीं करते और वो आपके मशवरा के बिना काम नहीं करता, वो आपसे कहे बड़ी खुशी का दिन है, चलो हराम गोश्त खाते हैं, आप खा लेंगे? बोलो भाई, नहीं खा लेंगे? नहीं नहीं ना खाएंगे? नहीं। तो जब आप अपने दोस्त, आपका दोस्त जबरदस्ती खिला देगा, आप जब कह देंगे हमारे धर्म में ये हराम है, तो वो खिला देगा? नहीं ना खिलाएगा। बोले हराम है, ठीक बात नहीं है, किसी के धर्म से खिलवाना, किसी के धर्म से खिलवाना, वो आपका दोस्त भी कहेगा, आपका दोस्त भी कहेगा। तो जिस वक्त आप हराम गोश्त के लिए उनको मना कर देंगे तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा, तो जीत की खुशी में अबीर जब लगाएगा उस वक्त अपने दोस्त से कहेंगे मेरे दोस्त ये मत लगाओ, माला पहना दो, तो ये लगाएगा? नहीं लगाएगा, माला पहना देगा। मगर हम ही को पता नहीं है कि अबीर लगाना है क्या, इसीलिए खुशी खुशी चलो लगा लेते हैं। मेरे भाई, ईमान खत्म, निकाह खत्म, पीरी मुरीदी खत्म, सब कहानी खत्म, ढांचा सिर्फ है आप मुसलमान के। एक बड़े मुफक्किर ने कहा था कि मुसलमान दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये मुसलमान, और कब्र में इसलिए पीटे जाएंगे कि वहां मुसलमान नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है। चेहरा यहाँ मुसलमान का, टोपी यहाँ मुसलमान की, कुर्ता पजामा मुसलमान की तरह, मस्जिद में जाना आना मुसलमान की तरह, मदरसा में जाना आना मुसलमान की तरह, उलमा से मिलना जुलना मुसलमान की तरह। मगर ऐसे ही कारनामों से ईमान दिल के तिजोरी से निकल चुका है, ढांचा सिर्फ बचा हुआ है। मगर जब आदा ए दीन और मुर्तदीन और मुशरिकीन, मुखालिफीन हुजूर और सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर न चलने वाले लोग आपको सिर्फ दाढ़ी टोपी के नाम पर मुसलमान समझ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर पिटाई हो रही है। मगर कब्र में जब हम और आप जाइएगा, ईमान यही निकल चुका है, तो वहां फरिश्ते देखेंगे ढांचा तो है, ये मुसलमान ही नहीं है, तो वहां पिटाई चालू। तो जरूरत इस बात की है, शिकायत याद आ रही है, रब इरशाद फरमाता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अरे मत मरो मगर इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो कर मरो। हम जरूरत के है, अगर मुसलमान हो के मरना है तो जब तक जिंदा रहो आंखें मुसलमान बना के रखो, कान मुसलमान बना कर रखो, हाथ मुसलमान बना कर रखो, पाँव मुसलमान बना कर रखो, दिमाग मुसलमान बना कर रखो, फिक्र मुसलमान बना कर रखो, सोच मुसलमान बना कर रखो, नजरिया मुसलमान बना कर रखो, निष्ठा को मुसलमान बना कर रखो, इबादत को मुसलमान बना कर रखो, सियासत को मुसलमान बना कर रखो। जब तुम्हारी हमारी आदत हो जाएगी कि सयापा हमारा मुसलमान बनता रहे, जब मौत आएगी कसम खुदा की ईमान पर खात्मा होगा, कब्र में अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जन्नत का बिछौना बिछा देंगे। तो 1000 रुपया हम लोग देते हैं और बेटा बेटी क्या पढ़ रहे हैं नहीं मालूम। हम आपसे कहना चाहते हैं वहाँ ईमान भी बर्बाद हो रहा है। इंग्लिश पढ़ाई आपके यहाँ मदरसा है कि नहीं? मदरसा में ही ज़कात फितरा से मदरसा नहीं चलाइए, बच्चों को क्लास के हिसाब से जैसे स्कूल में होता है ना, उसी मदरसा में लागू कीजिए और गवर्नमेंट से भी फायदा उठाइए।
बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़वाइए। 4 मौलाना है ना तो 4 मास्टर भी रखिए। तनख्वाह 10-20 हजार है तो उसको डबल कीजिए। काहे के लिए कुरान खानी में, फातिहा खानी में, 40वां में सूरह बकरा पढ़ने दौड़ेंगे आलिम लोग। हमने आपने अपने आलिमों का पेट नहीं भरा है। पेट जब भर जाता है इंसान को तो खाने के लिए दौड़ता नहीं है, खाने के लिए दौड़ता नहीं। हमारे आलिमों का जमाना के हिसाब से कम 30 से 35 हजार रुपया तनख्वाह देनी चाहिए। मगर हमारी कौम के वो बावकार ताज पहनकर अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग 10 और 15 और 20 के बीच में समेट कर रखते हैं। क्या हमारे कौम की खिदमत हमारे उलमा कर पाएंगे? पेट जब भूखा रहेगा, चंदा करने जाएगा तो चुरा लेगा। हाँ सही कह रहा है। पेट जब नहीं भरेगा, आप उलमा को खूब गोश्त पुलाव 3 टाइम खिलाते तो इन्हीं का पेट थोड़ी है। इनके पीछे माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बेटे भी है, बेटियां भी है, बेटे भी है, पोतियां भी है। सिर्फ इनका पेट भरने से और 3 टाइम गोश्त पुलाव खिलाने से इनका पेट नहीं भरेगा। अरे आज के पेट में एक मजदूर भी 500 रुपये रोजाना कमाता है, 15,000 रुपये महीना कमाता है। उस आदमी ने दिन का आपने बखार इतना गिरा दिया, 10,000 करके, 12,000 करके। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, 10,000 में आपने उलमा को रख लिया है। अब तो जब भूखे रहेंगे, बेटी का ख्याल आएगा, बीवी का ख्याल आएगा, घर के लोगों के पेट का ख्याल आएगा। 12,000 में घर का पुराना नहीं हो रहा है तो कभी आपसे चंदा के नाम पर 500 रुपये चुरा लेगा, कभी उनसे मांग लेगा, कभी चहल्लुम में जाएगा, कभी चहारों में जाएगा, कभी फातिहा पढ़ने जाएगा। आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अगर आपने उनके पेट में भर दिया होता तो चहारों चलिसवा के लिए ये उलमा दौड़ दौड़ कर आपके यहाँ 50 रुपया के लिए नहीं जाते। तनख्वाह की अच्छी होगी, मदरसा में रहते होंगे, क्लास के हिसाब से हर बेटा को पढ़ाते, हर बेटी को पढ़ाते, हर बेटा और बेटी एक तरफ आने में 3 बजे, दूसरी तरफ डॉक्टर पंखा लगा रहा था। मिजाज बदलिए, सोच बदलिए, उलमा का एहतराम कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए। आका फरमाते हैं अल इल्मु सलाही व सलाहुल मौलवी। मेरे नबी, बस आखिरी बात, मेरे नबी का फरमान है, दौलत शरबत ये हथियार नहीं है। मेरे नबी ने कहा है अल इल्मु सलाही व सलाहुल मौलवी। मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म मेरा हथियार है। इल्म, बोलो भाई, इल्म मेरा हथियार है और वही हर मुसलमान का हथियार है। सुभान अल्लाह। इल्म जब होगा तो हर मैदान में कामयाब आप होंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इल्म होगा, हर मैदान में आप कामयाब होंगे। आज इल्म नहीं है, हर जगह हम ही नाकाम हो रहे हैं, हर जगह हम ही नाकाम हो रहे हैं। सबसे पहले घरों का जायजा लीजिए, फिर दूसरे घर का जायजा लीजिएगा। हम भी अपने घर का जायजा ले, आप भी अपने घर का जायजा लीजिए। बेटी हमारी कैसे रह रही है, बेटा हमारा किस राह पे चल रहा है, बीवी हमारी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस सब पर गौर होना चाहिए। मगर किसी पर गौर करने से पहले अपने पर भी गौर कर लीजिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। मन अरफा रब्बहू फकद अरफा, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बह। मेरे और आपके लिए यही है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया है। सुभान अल्लाह। जब आप अच्छे होंगे, नमाजी होंगे, अच्छी बोली बोलने वाले होंगे, हसद बुग़्ज़ कीना चोरी चपटी करने वाले नहीं होंगे, तब आप शराबी नहीं होंगे, जुआरी नहीं होंगे। तब अपने बेटे को कहिएगा जुआ मत खेलना, शराब मत पीना, नमाज पढ़ने चलो। तब आपकी बात आपका बेटा और घर के लोग मानेंगे। आप जुआ खेलिए और बेटा बेटी पुतों को कहिए नमाज पढ़ने, तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो दूसरों को समझाने से पहले जरूरत इस बात की है, मौलवी है वो भी सुने, आलिम है वो भी सुने, जाहिल है वो भी सुने। अगर किसी को अमर की बात करनी हो तो
سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ خود عمل کرے، ان کی بات کو سن کر لوگ خود بخود عمل کرتے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو ان ساری اچھی باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی خطا لفظ ہو گئی ہو تو استغفار پڑھیے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے سسرال والوں کو سلامت رکھے، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے۔